السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کا ٹیلی فون۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت، مستونگ اور ہنگو دھماکوں میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ گھناؤنے واقعات میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حکومت دہشت گردی کی لعنت کو ختم کر کے دم لے گی، نگراں وزیر اعظم۔ مستونگ دھماکے کے بعد فضا سوگوار، صوبے میں 3 روزہ سوگ، جاں بحق افراد کی تعداد 55 ہو گئی۔ ایف آئی آر درج۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور نگراں وزیر داخلہ کا سی ایم ایچ اور ٹراما سینٹر کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو مستونگ دھماکے کی تحقیقات پر بریفنگ۔ علی مردان ڈومکی کی تحقیقات میں تمام پہلوؤں پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تمام حقائق عوام کے سامنے لائیں گے، نگراں وزیر اعلیٰ۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی ایجنسی را ملوث ہے، شہداء کے خون کا حساب لیں گے۔ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ آخری دہشت گرد تک پیچھا کریں گے، ریاست کی عملداری ہر صورت قائم کی جائے گی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ سلامتی کونسل کی مستونگ اور ہنگو میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، متاثرین کے لواحقین اور حکومت سے اظہار تعزیت۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور۔ امریکہ، سعودی عرب، ترکی، ایران، فرانس سمیت عالمی برادری کا پاکستان سے یکجہتی کا اظہار۔ امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان تھامس ویسٹ کی کالعدم ٹی ٹی پی کی کارروائیوں پر پاکستانی موقف کی حمایت۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں تیزی آئی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی خطے کے امن کے لیے شدید ترین خطرہ ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، تھامس ویسٹ۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستانی حکومت کی کاوشوں اور افغان طالبان پر دباؤ کا نتیجہ۔ افغان طالبان نے چترال حملے میں ملوث 200 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سپریم لیڈر ہیبت اللہ خنزادہ کی افغان عوام سے ٹی ٹی پی کو فنڈز نہ دینے کی ہدایت۔ کسی کو بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، سربراہ افغان طالبان۔ وقت کے ساتھ پاکستان اور چین کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط اور شاندار ہوں گے۔ آئندہ برسوں میں دونوں ملک کامیابیوں کے مزید سنگ میل عبور کریں گے۔ قومی دن پر چین کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی۔ پنجاب اور سندھ کے نگراں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات، کچے کے علاقے میں بیک وقت آپریشن کرنے پر اتفاق۔ دونوں صوبوں کی پولیس اور دیگر ایجنسیاں معلومات کا تبادلہ کریں گی۔ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر اور سید محسن نقوی کا گندم کی قیمت کے تقرر پر بھی تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کپواڑہ میں جعلی مقابلے کے دوران مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ قابض فوج کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر مقبوضہ وادی میں خوف و ہراس کی فضا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے کردار ادا کرے، حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر سکھ کمیونٹی کا دنیا بھر میں احتجاج۔ گلاسکو میں بھارتی ہائی کمشنر کو گردوارے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ مزید سکھ رہنماؤں بھارتی ایجنسیوں کے ہدف پر، کینیڈین پولیس اور انٹیلیجنس نے انتباہ جاری کر دیا۔ نہتے فلسطینیوں پر قابض اسرائیلی فوج کے مظالم، مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ، ایک اور فلسطینی شہید، 1 زخمی۔ رواں سال شہداء کی تعداد 242 ہو گئی۔ روس یوکرین جنگ میں شدت، روس کا مغربی محاذ پر بڑا حملہ، یوکرین کا 30 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ ڈونیسٹک، لوہانسک، زپوریژیا اور خیرسون روس کا حصہ ہیں۔ ان علاقوں کا الحاق بین الاقوامی اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے، صدر ولادیمیر پوٹن۔
अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, इमरजेंसी नाफिज। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। जेर जमीन ट्रेन के निज़ाम को पानी भरने के बाइस बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर 3 इंच से ज्यादा पानी खड़ा हो गया। सैकड़ों परवाजें मंसूख। शहर कायद गर्मी की लपेट में, पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। सितंबर का आखिरी दिन महीने का गर्म तरीन दिन रहा। गर्मी की लहर आइंदा 3 रोज मजीद जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बाला इलाकों में हल्की सर्दी की लहर। चीन में 19वीं एशियन गेम्स में पाकिस्तान का दूसरा मेडल। स्क्वॉश टीम इवेंट में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। भारत का गोल्ड मेडल। हॉकी पूल मैच में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 2 के मुकाबले में 10 गोल से कामयाबी। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और एशियन गेम्स के मेडल्स टेबल पर मेजबान चीन 114 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। जापान को 28 सोने के तमगों के साथ दूसरी और जनूबी कोरिया को 27 तलाई तमगों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली ने टेलीफोन किया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मस्तोंग और हंगू धमाकों में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया। निगरान वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि इन घिनौने वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और हुकूमत दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करके दम लेगी। मस्तोंग धमाके में कीमती जानी नुकसान पर सूबे की फ़ज़ा सोगवार रही। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान ढुमकी ने पुलिस और CTD को हिदायत की है कि तहकीकात में तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए उनके तमाम ठिकाने खत्म करके रहेंगे। तफसील जानते हैं वक़ार अहमद से। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय इंटेलिजेंस रॉ मुलव्विस है। मस्तूम सानहे में 55 अफराद शहीद हुए। निगरान वफाकी वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जानते हैं कि कौन है और कहां से कर रहा है। हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहां से ये सब हो रहा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे। हम इनके खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, चाहे वो IBOs की सूरत में हो, चाहे जो मर्जी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। एक पाकिस्तानी का खून इस बेदर्दी के साथ बहाया गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है उन दहशतगर्दों के लिए, उनके फैसिलिटेटर्स के लिए, उनके सिंपैथाइजर्स के लिए। निगरान वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि तहकीकात कर रहे हैं दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट कर रहा है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले मुसलमान कैसे हो सकते हैं। कुरान में बड़ा वाज़े फरमाया गया है कि ये वो लोग हैं जो इस्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे फसादी हैं और इन फसादियों को उन्हीं लाइंस के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे हम मिल के एक सिनर्जी के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे हमारी फ़ौज हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, सिविल हों, मिलिट्री हों, सब मिल के इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। सानहे मस्तूम की तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। रियासत के रिट कायम रखने और दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यकीनी बनाने के हवाले से अहम फैसले भी लिए गए हैं। मस्तूम धमाके के जख्मियों की अयादत के लिए चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और निगरान वफाकी वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी CMH और ट्रॉमा सेंटर कोयटा भी गए। मस्तूम धमाका खुदकुश था। हमले में 50 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। वाक़े की FIR CTD कोयटा में नामालूम हमला आवरों के खिलाफ दर्ज की गई है। तफ्तीश भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है। धमाके में 6 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। 2018 के दरीनगढ़ सानहे के बाद मस्तूम में ये दूसरा दिलखराश वाक़या था। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़ कोयटा। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा है कि कलअदन TTP की दहशतगर्द सरगर्मियां खित्ते में अमन के लिए खतरा हैं। एक सेमिनार में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हमेशा याद रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए कलअदन TTP की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल में इजाफा देखने में आया है।
the Taliban's relationship with TTP, I mean, anybody who's focused on this region since the birth of TTP understands well that as they were pushed across the border, they became allies of the Taliban during the war. They were financial supporters, logistical supporters, operational allies as well. And so I think the ties between them are quite, whether the Taliban are supporting TTP attacks against Pakistan, that's a tough one and probably gets beyond what I'm able to talk about publicly. Is Pakistan a hindrance or a help? I'd say on balance they're a help. They are. They are certainly a partner when it comes to security issues. They are a helpful troubleshooter on relocation-related issues as well. They have been helpful to us when it comes to refugee processing as well. So on balance, I'd say a help. नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत करते हुए मुतासरीन के अहल खाना और हुकूमत पाकिस्तान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। काउंसिल ने ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सलामती काउंसिल ने इस बात का इयादा किया कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी की नाकाबिल मजम्मत कार्रवाइयों के मरतकब अफराद, मनसूबा साजों और माली मुआवनत करने वालों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताअवुन करें। सलामती काउंसिल के अरकान ने इस बात का इयादा किया कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी मुजरमाना और बिला जवाज़ है, चाहे उसका महरिक कुछ भी हो। उन्होंने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि आलमी अमन और सलामती को लाहक दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करें। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों को घरौना करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि OIC दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खिलाफ खड़ा है और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार करता है। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ईरान, अमरीका, रूस, फ्रांस, मिस्र और इराक ने भी मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। अपने पैगामात में उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना फेल है जिसके मुकम्मल खात्मे के लिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए तशद्दुद और दहशतगर्दी को तर्क करने के बारे में अपने मजबूत मौक़िफ़ का इयादा किया। दोस्त मुल्कों ने मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एक मजहबी तकरीर के दौरान दहशतगर्दी एक वहशियाना और गैर इंसानी फेल है। वाकई के जिम्मेदारान को किसी भी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए। उलमाए कराम का कहना है कि दहशतगर्दी का किसी भी मजहब या अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। दहशतगर्दों की तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई मजमूम और काबिल नफरत और काबिल मजम्मत अमल है। हम इस किस्म की कार्रवाई को भरपूर मजम्मत करते हैं और इस्लाम में इस किस्म के कार्रवाइयों की कोई जवाज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। ये मुसलमान कर ही नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल इस्लाम से खारिज लोग हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे वाक़यात की हम मजम्मत करते हैं। दो खुदकुश हमले हुए हैं जिसके नतीजे में हमारे मुसलमान भाई, अफवाज और छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस्लाम में इस किस्म के हमले जायज़ नहीं है, हराम है और ये खवारिज की तरफ से किए गए हमले हैं। ये वो लोग हैं जो कि दुश्मनों के अलाकार, दुश्मनान इस्लाम के, दुश्मनान इंसानियत के अलाकार है। ना तो इस किस्म की कार्रवाइयों का इस्लाम में इनकी कोई गुंजाइश है, न इंसानियत में इनकी कोई गुंजाइश है। इन दुश्मन अनासर जो खवारिज है, इस तरह हमले करना, मुल्क के अमन को तार तार करना, ये एक कुफरी अमल है। हम इस हमले को पुरजोर अल्फाज के साथ मजम्मत करते हैं। मस्जिद में वाक़या हुआ और ख़ुदकुश धमाका हुआ ऐन खुतबा के मौका पर, तो अगर आप सोचें, कोई भी मुसलमान सोचे, तो ये किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। ये
حتیٰ کہ کسی انسان کا بھی کام نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ ہیں یہ انسانوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان میں انسانیت ہی نہیں ہے. یہ خوارج، یہ مفسدین اور یہ کفار اور دوسرے ملکوں کی ایجنٹ، اللہ عز و جل ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو اللہ عز و جل امن کا گہوارہ بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں یہ انسان نہیں، درندے ہیں، درندے، جنہوں نے اس مبارک دن کے اوپر نہ اللہ کے گھر کی حرمت اور تعظیم کا خیال رکھا اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کا خیال رکھا، اور ان کی تعلیمات کو رونتے ہوئے انہوں نے اللہ کے بندوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جو کہ میں نے آیات پڑھی، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ناظرین، اسلام نے ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. اسلامی تعلیمات میں زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت وعید کی گئی ہے. دیکھتے ہیں عمران منصب خان کی یہ رپورٹ. اسلام امن اور اعلیٰ انسانی اقدار کا مذہب ہے جس میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں. مختلف قرآنی آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سلامتی اور امن اسلام کا بنیادی نقطہ نظر ہے. سورۃ المائدہ میں لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. امن کو تباہ کرنا، انسانی زندگی سے کھیلنا فساد ہے. قرآن نے اس کی سزا تجویز کی ہے. مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. جو شخص کسی غیر مسلم کو جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے، اس کی جان کے تحفظ کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے، اب جو شخص اللہ کے ذمے کی بے حرمتی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تاریخ شاہد ہے کہ جنگ کے مواقع پر بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو عام لوگوں، آبادیوں اور دوسرے مذاہب کے پیشواؤں سے رحم کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں داخل ہونے لگے تو اعلان کرا دیا کہ کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے. سابق امریکی صدر باراک اوباما بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ اسلام امن اور اعلیٰ انسانی اقدار کا مذہب ہے. دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متعلق ثابت ہے کہ جو لوگ ایسا رویہ اور انداز اپناتے ہیں دین اسلام انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. رواں ماہ کی 25 تاریخ کو مسیح برادری کے وفد سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسلام اور معاشرے میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایک مہذب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ہے. اسلام اور کفر کا بنیادی فرق ہی اعتدال اور انتہا پسندی کا ہے. عمران منصب خان، پاکستان ٹیلیویژن نیوز، اسلام آباد. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے دہشت گردی کی حالیہ لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے افغان سرزمین کا استعمال اور بھارتی ایجنسیوں کی دخل اندازی ہو رہی ہے. تمام سیاسی قوتیں اس ناسور کے خاتمے کے لیے متحد ہوں. یہ دہشت گردی ایک بہت بڑے واقعات دوبارہ سے سر اٹھانے لگے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک کے اندر جتنی بھی ہے جو سیاسی قوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو متحد ہو کہ اس ملک کے عام بے گناہ شہریوں کو تحفظ دینے کا سوچنا چاہیے. اسلام کے نام پہ جو جنونی لوگ ہیں، طالبان لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کا کھلا قتل عام کرتے ہیں، ہم تو ان کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں. اس دھماکے کے لیے سارے پارٹی مل کر مذمت کریں بھرپور، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف جو عجیب و غریب پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. یہ نگران حکومت اور پاک فوج کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے. سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں پاکستان میں، ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ آؤ مل کر ہم افواج پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ دیں کہ ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو جنہوں نے یہ گنونی حرکت کیا ہے وہ کہیں سے مسلمان نہیں ہو سکتا. دھماکے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اس پہ ساری مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس کا سدبھاؤ کرنا چاہیے. یہ جو دہشت گرد جو ریاست کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت آپریشن کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. اس مستون میں جو دہشت گردی ہوا اس پہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اتحاد کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پہ پرزور مذمت کریں. یہ انتہائی دلخراش واقعات ہوئے ہیں
और इस पे हमें हमारे दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। इन लोगों ने मस्जिद में तो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में इतना धमाका किया है। इन लोग ये मुसलमान नहीं है, कसम खुदा के ये मुसलमान नहीं है। सियासी मफादात को बले ताक रख कर अपने फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, पेशावर के इलाके मित्रा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 10 रॉकेट लॉन्चर गोले बरामद कर लिए गए। एसपी वार्षिक अरशद के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मित्रा के इलाके से खेतों में छुपाए गए 10 रॉकेट लॉन्चर गोले बरामद कर लिए। रॉकेट लॉन्चर और गोले पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने का खदशा था। जिला हंगू के इलाके दुआबा के पुलिस स्टेशन में होने वाले धमाके की एफआईआर थाना सीटीडी कोहाट रीजन में दर्ज कर ली गई। एफआईआर पुलिस थाना दुआबा के एसएचओ की मुद्दयत में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज की गई। एफआईआर में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। हमलावर के जिस्म के आज़ाद डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की काविशें और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव के हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलव्विस 2 सताए टीटीपी के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अफगान अवाम को भी हिदायत की है कि वो टीटीपी को फंड्स ना दें। 21 सितंबर 2023 को अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी से काबुल में मुलाकात के दौरान टीटीपी के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में तफसीलात शेयर की। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों को बेअसर करने के लिए ठोस इक़दाम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अफगान तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान की सरहद से दूर मुंतकिल करने के अमल का भी आगाज़ कर दिया है। अफगान तालिबान के सरबराह का कहना था कि किसी को भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे कबल 6 अगस्त 2023 को भी अफगान तालिबान के सरबराह ने पाकिस्तान पर सरहद पार से हमलों को हराम करार दिया था। पाकिस्तानी हुकाम ने तालिबान हुकाम को वीडियो शवाहिद और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अरकान की लाशें दिखाई थी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के लवाहिकीन को टेलीफोन किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सूबेदार कैसर रहीम शहीद, लांस नाइक अब्दुल रहमान शहीद और लांस नाइक जमशेद खान शहीद के वरसा से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलुकत ने वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात की वीडियोज़ को एडिट करके उन पर फ़ौज मुखालिफ नारों की ऑडियो लगाकर फेक वीडियो से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज मुखालिफ फेक वीडियोज़ पर अवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा है कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। फेक वीडियोस बनानी नहीं चाहिए, सही जो भी दिखाओ रियल दिखाओ। जो भी ये कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के खिलाफ बिल्कुल इंक्वायरी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। पीटीआई ने तो हमारे सारे माशरा बर्बाद किया अखलाकी तौर पर। तरह के झंडे सोशल मीडिया के जरिए वो नौजवान नस्ल को दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बहुत गुमराह हो रही है। जो इदारों को बदनाम करने के लिए फेक वीडियोस चलाते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं। मेरा ख्याल है इदारों के साथ अगर आप मुखलिस नहीं है तो कम से कम उस पर इल्ज़ाम भी ना लगाएं। अपने मकसद के लिए वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे इमरान खान है तो वो क्या करता है, वो धरने लेकर आ जाए। ये वीडियो लगाते हैं, ये गलत काम है। ये फौज बहुत अच्छा काम थोड़ा करती है। ये जो अपलोड कर रहे हैं, जो वीडियो जो फौरन लोग कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। ये हमारा मुल्क है। अवाम को गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू करें। प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ऐसा करनी नहीं चाहिए। पीटीआई जो है अवाम को गुमराह कर रही है, अवाम जो है फौज के साथ है। ये जो है वो हमारे मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं। पीटीआई में जो लोग भी हैं गुमराह हैं। इदारों को नहीं बदनाम करना चाहिए। दंगे फसाद करती है, चीज़ों को तोड़फोड़ करती है, अवाम को नुकसान पहुँचाती है। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोगों में नफरत पैदा होती है। जी, पीटीआई अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ये सही नहीं है। ये गलत बात है ना, जो इदारों के खिलाफ बोलते हैं ना, वो नहीं बोलना चाहिए।
निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत और शानदार होंगे। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने अवामी जमहूरियत चीन के कौमी दिन के मौके पर हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी और तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात कामयाबियों के मज़ीद संगे मील उबूर करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात और नशरियात की हैसियत से 1 अक्टूबर को अवामी जमहूरियत चीन की जो सालगिरह है उस पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये साल और अगले कई साल पाकिस्तान और अवामी जमहूरियत चीन की जो दोस्ती है उसमें नए संगे मील तामीर करेंगे और ये ताल्लुकात पहले से ज़्यादा सिर्फ मजबूत नहीं होंगे बल्कि खुशगवार भी होंगे। हुकूमत की तरफ से डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के नतीजे में माह सितंबर में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में खातिर खा कमी हुई है। तफसील बताएंगे ज़िशान अहमद खान अपनी रिपोर्ट में। बेकाबू होता हुआ और ऊंची उड़ान उड़ते हुए डॉलर को कंट्रोल करने के लिए 4 सितंबर 2023 को मौजूदा निगरां हुकूमत ने डॉलर माफी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया। जैसे ही डॉलरों के स्मगलरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो डॉलर माफिया ने जखीरा किए अपने डॉलर्स को ओपन मार्केट में लाना शुरू किया, इस उम्मीद से कि महंगे दामों खरीदे हुए डॉलर्स मजीद महंगे होकर बिकेंगे। ताहम ये ख्वाब चकनाचूर हो गया और अब यही डॉलर ओपन मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त हो रहा है। माह सितंबर में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 रुपए की कमी, जबकि इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 19 रुपए से ज्यादा की कमी हुई। माशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि डॉलर बहुत जल्द अपनी असल कीमत पर आ जाएगा। ज़रूरत इस बात की थी कि हमें डॉलर को कंट्रोल करना है। डॉलर की जो परवाज थी उसकी सबसे बड़ी वजह थी सट्टाबाजी, डॉलर की स्मगलिंग। 20 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक को सिलेंडर करे कि जो उनके पास से वो लोग नहीं अब ले रहे थे क्योंकि डॉलर नीचे होना शुरू हो गया था। तो किस बात पे लोग सरमायाकारी करते हैं। पाकिस्तानी रुपए की इस माह आलमी सतह पर कारकर्दगी सर फहरिस्त रही। मौसर हुकूमती इकदाम के बायस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक सितंबर में रुपया तकरीबन 6% बढ़ गया। ये काबिल जिक्र कारनामा है क्योंकि ज्यादातर करेंसियां डॉलर के मुकाबले में इस कयास पर गिर गईं कि अमरीकी सूद की शरह ज्यादा देर तक बुलंद रहेंगी। खबर में बताया गया है कि पाकिस्तानी रुपया इस माह तकरीबन 307 की कम तरीन सतह पर जाने के बाद जुमेरात को 0.1% से बढ़कर 287.95 डॉलर हो गया। 307 और 287.70 में 6.5% कमी हुई है, जो 19 रुपए की कमी है। दूसरी जानिब डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ रहे हैं और 100 इंडेक्स ने 46,000 की नफसियाती हद को भी अबूर किया। माह सितंबर में ही स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हजम में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जबकि सरमायाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पंजाब में क्रैकडाउन की तफसील जानते हैं फरहाना खान के इस रिपोर्ट में। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 24वें रोज भी जारी रहा और सैकड़ों कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनके खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIRs दर्ज करा दी गई हैं। लेस्को बिजली चोरों के साथ साथ उनकी मुआविनत करने वाली महकमे की काली भेड़ों और गफलत के मुर्तकब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी रखे हुए है। कसूर सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर 16 एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। लेस्को की तरफ से बिजली चोरों को जुर्माना करने का सिलसिला भी जारी है। गैपको रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मजीद 38 बिजली चोर पकड़े गए। अब तक गैपको के तमाम रीजन्स में 1215 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 48 ज़रई, 8 सनती, 35 कमर्शियल और 1118 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। बिजली चोरों को तकरीबन 11 करोड़ रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। फेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है और रीजन्स में मजमूई तौर पर पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 2100 से तजावुज कर गई है। फेस्को रीजन में अब तक 700 से ज्यादा अफराद बिजली चोरी में गिरफ्तार हुए और मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद में हेस्को ने बिजली चोरों नादहिंदगान से 2 अरब 43 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की रकम वसूल कर ली, जबकि 1015 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में दरखास्तें दायर की गई हैं। तर्जमान के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 370 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। हैदराबाद में 33 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पेस्को की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। अब तक 572 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बिजली चोरों पर 2596 से जायद मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। 28 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं, जबकि 6000 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त जमा की जा चुकी है। FIA ने खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 100 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान FIA के मुताबिक FIA पेशावर ने गुज़िश्ता 6 हफ्ते के दौरान 74 मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं, जिसके दौरान 100 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि 85 मुकदमा दर्ज किए हैं। छापों के दौरान मजमूई तौर पर 17 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर दी गई है। बरामद की गई करेंसी में 13 करोड़ रुपए पाकिस्तानी भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी के एक्सचेंज में मुलव्विस थे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरान कराची में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों वज़राए आला ने कच्चे के इलाके में बैक वक्त फैसला कुन ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि पंजाब के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब में कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस करेगी, जबकि सिंध की जानिब से भी उसी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि कोई डाकू सिंध से पंजाब और पंजाब से सिंध की हदूद में दाखिल न हो सके। ऑपरेशन में दोनों सूबों की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक दूसरे से मालूमात का तबादला करेंगे। मुलाकात में दोनों वज़राए आला ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने पर भी तबादला ख्याल किया। गंदम की नई कीमत बाहमी मुशावरत के बाद तय की जाएगी। आंखों की वबाई बीमारी आशुबी चश्म लाहौर समेत पंजाब भर में तेजी से फैल रही है। सूबे भर में मजीद 10,000 अफराद इस बीमारी का शिकार हुए हैं। इसकी तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। मौसमी बरसात या नमी में अशोबे चश्म का इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। अशोबे चश्म के शिकार अफराद की आंखें सुर्ख या गुलाबी हो जाती हैं और उनसे पानी बहता है। आंखों में खारिश और सोजन भी हो जाती है। रवां साल पंजाब के 36 अजला में 3,94,795 अफराद अशोबे चश्म का शिकार हो चुके हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान अशोबे चश्म के 452 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद सूबाई दारुल हुकूमत में अशोबे चश्म के मरीजों की तादाद 23,397 हो गई है। वैसे तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कहीं मरीज डॉक्टर समझता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, सोजिश है आँखों में, पानी ज़्यादा आ रहा है, पेन हो रहा है, तो उस सूरत में हम डॉक्टर के पास आएंगे तो हमने वो भी फरावानी में ड्रॉप्स वगैरह मुहैया करवा दिए हैं। ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे अंधापन होने का कोई चांस नहीं है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बहावलपुर में अशोबे चश्म के 1,540, मुल्तान में 1,048, फैसलाबाद में 1,132 और रावलपिंडी में 175 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हदायत की गई है। अशोबे चश्म से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हदायत पर अमल दरामद ज़रूरी है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि एविस्टन इंजेक्शन से लोगों की बिनाई मुतासिर होने के हवाले से तहकीकात जारी हैं, जिसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और इसमें मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर के हमरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एविस्टन इंजेक्शन एक हफ्ते से आँख के लिए बंद है, मगर कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर जमाल नासिर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एविस्टन इंजेक्शन के नमूने तज्जिए के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। इंजेक्शन का सैंपल दुरुस्त साबित हुआ तो इस वाक़े की जिम्मेदारी छोटी सिरिंजों में भरने वालों पर आयद होगी। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद में शहरियों को सेहत के शोबे में सहूलतों की फराहमी और जारी मनसूबों के बारे में ब्रीफ किया गया। डॉक्टर नदीम जान ने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि जारी मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि इस्लामाबाद के अस्पतालों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जा रहे हैं।
निगरान वजीर मनसूबा बंदी समी सईद ने कहा है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। आज़रबाईजान में होने वाले दूसरे नेशनल अर्बन फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई, सयाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। निगरान वफाकी वज़ीर ने किर्गिस्तान और कम्बोडिया के हम मनसबों समेत आज़रबाईजान की शहरी मनसूबाबंदी और फ़न तामीर की स्टेट कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मलेशिया से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब आए सिख यात्रियों ने कहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ आने के बाद यकीन हो गया है कि भारत पाकिस्तान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करता है। जो सुकून और मोहब्बत पाकिस्तान से मिली है वो नाकाबिले बयान है। दुनिया भर में मुकीम सिख बिला खौफ खतर पाकिस्तान आए और यहाँ तमाम गुरुद्वारों की यात्रा करें। Hospitality was first class, security was awesome, outstanding. There was not at all need to be scared at all. It is a very safe country. I really genuinely request to all the Sikh community and the other community, please come to Pakistan and see. It's totally different what normally they show in the pictures and all everything. You will feel very safe, very secure. And as humble request, the minute you enter the Pakistan border, you will feel peace. Seriously, it's a very peaceful country. I humble request, please come forward and support Pakistan. I have no words to express. It's such a beautiful country. What I say is seeing is believing, and coming here is believing. नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मज़ीद 2 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने नौजवानों को ज़िला कुपवाड़ा के इलाके मजहल में एक जाली मुकाबले के दौरान शहीद किया है। फ़ौजियों ने बारामूला, पुलवामा, कुलगाम, कुश्तवाड़ा, राजौरी और दीगर अजला में भी अपनी पुरतशद्दुद फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। भारतीय फौजी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को अगवा करके दूर दराज इलाकों में ले जाते हैं, उन्हें जाली मुकाबलों में शहीद करते हैं और फिर उन्हें गैर मुल्की अस्करियत पसंद करार दे देते हैं। पथरबिल, मजल और अमशीपुरा जाली मुकाबले उसकी वाह से मिसालें हैं। भारत के बदनामी ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA ने ज़िला पुंछ में मुतादिद मकामात पर घरों पर छापे मारे। छापों के दौरान NIA के एहलकारों ने मकीनों को हिरासा किया। हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनामी ज़मानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से पैदा किए गए खौफ और दहशत के माहौल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले। भारत को सिख रहनुमा हरदीप निज्जर के कत्ल के नताइज ताहाल आलमी सतह पर भुगतना पड़ रहे हैं। सिखों ने बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को ग्लासगो गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया। दूसरी जानिब भारतीय पंजाब में भी सिख भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट देखिए। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के हाथों सिख रहनुमा हरदीप निज्जर के कत्ल के बाद कनाडा भारत तल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। सिख कौम में भारत के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि सिखों ने बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दुर्रे स्वामी को ग्लासगो गुरुद्वारे में दाखिल नहीं होने दिया। हरदीप निज्जर के कत्ल पर सरापा एहतजाज सिख अफराद भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कैनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस ने एक और सिख रहनुमा को मुतनब्बे किया है कि उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से जान का खतरा है। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे इंतजामी कमेटी के सीनियर रुकन गुरमीत सिंह तौर को कहा गया है कि उन्हें कनाडा में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंटों से खतरा है। गुरमीत सिंह तौर ने कहा है कि भारतीय हुकूमत उन्हें जान से मारना चाहती है क्योंकि वो खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब भारतीय पंजाब में भी सिख भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ घरों से निकल आए। सैकड़ों सिख मुजाहिरीन ने गोल्डन टेम्पल के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने पोस्टर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय खुफिया एजेंसी के हाथों हरदीप निज्जर के कत्ल की मजम्मत की गई और आजाद खालिस्तान का मुतालबा किया गया। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा, अमरीका और मुख्तलिफ मगरबी रियासतों में भी ताहाल सिख बरादरी की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। साइफर केस में FIA ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया है, जिसमें चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है। FIA चालान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मजबूत गवाह बन गए हैं। चालान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। उन्होंने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस हमला केस में मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फारूक हबीब, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती समेत दीगर को इश्तेहारी करार दे दिया है।
इंसदाद दहशत गर्दी की जज अबरगुल ने मुलजिमान को जिना हाउस हमले के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश की जिसमें बताया गया कि मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए थे, लेकिन मुलजिमान रूपोश हो चुके हैं। अदालत ने मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, जुबैर खान नियाजी, करामत खोकर, इंदलीब अब्बास और दीगर मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। FIA की जानिब से अदालत को बताया गया कि मोनिस इलाही की स्पेन और बरतानिया में रिहाइशगाहें हैं। दोनों जगह पर समन वसूल करवाने की कोशिशों में कामयाबी नहीं हुई। जज अब्दुल सत्तार लंगाह की तरफ से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत के पास यकीन करने के लिए मवाद मौजूद है कि मुल्जिम मफरूर है और समन की पाबंदी नहीं करेगा। केस की आइंदा समाअत 11 अक्टूबर को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी अंधेरे खत्म करना और आवाम को रिलीफ की फराहमी नवाज शरीफ का एजेंडा है। लाहौर में मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी तवज्जो और इक़दामात का मकसद आवाम को मुश्किलात से निकालना और रिलीफ देना है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि पार्टी कायद की वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तमाम तंजीमों के साथ राबतों को मुअस्सर बनाया जाए। मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ जिसमें पार्टी के पंजाब के डिवीजनल और जिलाई अहदेदार शरीक हुए। इजलास में मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल के लिए इंतजामात पर मुशावरत हुई। इजलास से खिताब करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि कौम की उम्मीद और वादों की तकमील का नाम नवाज शरीफ है। मुस्लिम लीग नून के कायद नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल और तरक्की की ज़ामिन है। नवाज शरीफ कौम को मुत्तहिद करते हुए तरक्की का विजन देंगे और बहरानों से निजात दिलाएंगे। पार्टी रहनुमाओं एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब ने भी इजलास में इजहार ख्याल किया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने कौम से झूठ बोला और तब्दीली के खोखले नारे लगाए। कोहाट में वामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जमात खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत हासिल कर रही है। आइंदा इलेक्शन में सूबे की बड़ी पार्लिमानी जमात बनकर सामने आएंगे। परवेज खटक ने कहा कि जो ये कहते थे कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इलेक्शन में जवाब मिल जाएगा। ख़वातीन के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से पेशावर में पहले सिम्पोजियम का इनेकाद हुआ। सिम्पोजियम का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को बढ़ाना था। सिम्पोजियम में ख़वातीन के दफातर में हरासगी, इम्तियाजी सलूक और तनख्वाहों में कमी वगैरह पर भी रोशनी डाली गई। ख़वातीन ने पाक फ़ौज के इस इक़दाम को सराहते हुए सिम्पोजियम को खुशाइंद करार दिया। دا د KP رومبې ویمن سمپوزیوم چې د خواتینو په حواله باندې شوی دی. د دې سمپوزیوم ټولو کې لوی اهمیت چې زما مخې ته راغی هغه چې دا کوم یو بیریر زمونږ د آرمډ فورسز پرټیکولرلی د آرمی او زمونږ د خلکو په منځ کې دی هغه کې زمونږ ډیر زیاده سه سوچ یو چې د دې باره کې ډیر منفی و آگے بارے کے ڈیڑھ سیزن ہم تک کلیئر چھپا گئے مونگا ڈیٹ. اس میں ہم نے بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا جس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ عورتوں کو کس طرح سے امپاور کیا جائے اور اسپیشلی مرج ایریا کے حوالے سے کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز مرج ہو گئے ہیں اور وہاں کی خواتین کے لیے اب کس قسم کے ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں اور ان ترقیاتی کاموں کو جن میں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے بہت سی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں. That kind of a realization and bringing that focus on the role that women can play and how that Pakistan itself cannot really properly develop unless the women role and empowerment is taken forward. So all in all, an extremely interesting and very, very vibrant conversation. قسم کے سمپوزیم فیوچر میں بھی ہونے چاہیے تاکہ اس قسم کی اسٹریٹجیز بنے کہ سارے ڈپارٹمنٹس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائیں. تمام خواتین ریگارڈلیس آف دیئر پروفیشن اینڈ ایج ان کے سجیشنز کو سنا گیا, ان کے اوپینینز کو سنا گیا, خواتین کے مسائل کو سنا گیا اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے باقاعدہ ان مسائل کو لکھا اپنے ساتھ. سیمینارز ارینج کرنی چاہیے اور میں پاک آرمی کا بہت ہی زیادہ تھینکسفلی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ سیمینار ارینج کیا اور ہمیں موقع دیا یہاں پہ آ کے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے حق کے لیے بولیں.
खवातीन की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश और उनकी मार्केटिंग के लिए लाहौर में 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज हो गया है। तफसील जानते हैं असका मकसूद से। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मुनाकिद की जाने वाली ग्रैंड वेक्सनेट का मकसद मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली खवातीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो अपनी तैयार करदा मसनूआत की बेहतर अंदाज में मार्केटिंग कर सकें। इस साल इस नुमाइश का मौजू एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना और कौमी मईशत में उनकी शराकत की अहमियत को उजागर करना है। मुल्क भर से मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली खवातीन शिरकत कर रही हैं और उनकी तैयार करदा मसनूआत के 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो 65 साल से ऊपर की हैं या बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, यतीम बच्चियां हैं, उनके लिए एक चार दीवारी के तकद्दुस को रखते हुए हमने अपना एक फैक्ट्री यूनिट बनाया है जहाँ पे उनको बाइज्जत रोजगार मुहैया किया जाता है। नुमाइश में घरेलू सजावट, ब्यूटी मसनूआत, टेक्सटाइल, जेवरात, लेदर मसनूआत समेत मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ रखी गई मसनूआत एक से बढ़कर एक हैं। खसूसन कैलाश, चित्राल और बलोचिस्तान से आई खवातीन की तैयार करदा मसनूआत हर एक की तवज्जो का मरकज रही। खवातीन को चाहिए कि वो आगे बढ़ें, अपना कारोबार करने को तरजीह दें और मुल्क की मईशत की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर के प्रोड्यूसर मुजम्मिल हुसैन जतोई को उनके आबाई गांव फाजिलपुर जिला राजनपुर में सपुर्द खाक कर दिया गया। तफसील बताएंगे शिराज दुरानी। मुजम्मिल हुसैन जतोई गुज़श्ता 5 साल से हड्डियों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम ने मार्च 2008 में PTV इस्लामाबाद न्यूज़ मरकज से बतौर प्रोड्यूसर अपने कैरियर का आगाज किया। मुजम्मिल हुसैन जतोई इस्लामाबाद मरकज से मारूफ न्यूज़ शो डेटलाइन पाकिस्तान समेत बुलेटिन प्रोड्यूस करते रहे और रिपोर्टिंग भी की। 2010 में PTV मुल्तान मरकज ज्वाइन करने के बाद मरहूम ने रिपोर्टिंग के जरिए जनूबी पंजाब के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा किया। 2018 में हड्डियों के मर्ज में मुब्तला हुए तो मर्ज बिगड़ने के बाद गुर्दे भी मुतासर हो गए। वो गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल गुर्दों का डायलिसिस करा रहे थे। गुज़श्ता निस्फ शब तबीयत बिगड़ने के बाद वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। मरहूम ने बेवा, 2 बेटों और एक बेटी को सोगवारान में छोड़ा। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी और विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात व MD PTV ज़हूर अहमद ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हुए लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। उनका कहना था कि दुख की इस घड़ी में वो लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव फाजिलपुर में अदा की गई, जिसमें PTV मुल्तान के मुलाजमीन और इलाके के अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसमें कभी किसी के साथ न गिला किया न शिकवा किया। मैंने उसके चेहरे पे कभी शिकवा नहीं देखा। जितना उनके खिदमात पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के लिए हैं, हम हमेशा उसको सुर्ख लफ्ज़ों में और उसको हमेशा शानदार लफ्ज़ों में याद करेंगे। मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना नफीस, शफीक और हिम्मत वाला बेज़रर इंसान नहीं देखा। इस कर्ब के दौरान उन्होंने जो अल्लाह के हुजूर शुक्र बजा लाया, जो सब्र किया, वो यकीनन उनके लिए आखिरत में उनकी कामयाबी का और उनकी सुखराई का बायस बनेगा। बहुत हौसले वाले बंदे थे, तकलीफ़ में भी होते तो जॉब करते थे। मैं उनको रोकता था, छोड़ दें ये PTV, ये जॉब क्या करना है। बस वो ड्यूटी अपनी टाइम पे देता था जितनी भी तकलीफ में होता था। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ओन अब्बास शाही और जनरल मैनेजर PTV मुल्तान अहमद वकार भट्ट समेत मैनेजमेंट ने भी लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। CBA यूनियन मशल के मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक अहमद ने भी मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 3 प्रोग्राम्स के जरिए 93 लाख मुस्तहिकीन मुस्तफीद हो रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने इस प्रोग्राम का दायराकार वसी करने के आज़म का इज़हार किया है। आसिम नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने लाहौर में BISP डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा किया और अमले से मुलाकात की। सेंटर में मौजूद खवातीन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। इनमें से अक्सर वो लोग हैं, एक रोटी नहीं खाते, आधी खाते हैं। एक बीबी ने कहा जी एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते। अब इसके बाद जिनको दिन में 3 दफ़ा खाना मिलता है, उनको सोचना चाहिए कि वो भी कुछ थोड़ी सी मदद करें, टैक्स दें इस मुल्क में। ये हमारे 93 लाख लोगों को, पाकिस्तान के 93 लाख खुशहाल घराने अपना लें तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने इस अज़्म का इजहार किया कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि कौम का ये पैसा सिर्फ मुस्तहिकीन तक ही पहुँचे और इस सिलसिले में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी, एक तो सबसे जो मुस्तहिक लोग हैं
उन्हीं को ये मदद मिले। दूसरी ये है कि जो इनको खुदा न खास्ता जो कटौती की शिकायत करती हैं वो कम हो जाए। तीसरा ये है कि हमारे जो बिस्क के जो मुलाजमीन हैं, ये मुलाजमीन नहीं समझें अपने आप को, ये अपने आप को इनका भाई बेटा कुछ रिश्ता समझे ना इनके, तो वो खुश अखलाकी से पेश आएँ। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें बेनज़ीर कफालत, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ और बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम शामिल हैं। मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी पैसे मिल रहे हैं और नशोनुमा सेंटर से भी पैसे मिल रहे हैं और बच्चों के वज़ाइफ से भी पैसे मिल रहे हैं। उससे ये आसानी हो जाती है कि मैं अपने बच्चों का राशन पानी और उसके अलावा बच्चों के स्कूल की जो है फ़ी वगैरह देने में मुझे आसानी हो जाती है। 2 बच्चे ने, मेरी नूंह भी बेवा, मैं भी नहीं बेवा वा। ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 93 लाख मुस्तहकीन इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर रहे हैं, जिनमें से पंजाब में 340 ख्वाजा सरा भी शामिल हैं। आई दा पैसे लेके जाइए ने गुजारा चल रहा है। शुक्रिया करीदा इन्होंने लोगों का जेडे साड़ी इमदाद करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर मुस्तहिक खातून को 9,000 रुपए सहमाही दिए जाते हैं, जिसके लिए पंजाब में 157 जबकि लाहौर में 12 डायनेमिक सेंटर्स काम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुआशरे के नादार और मुस्तहिक अफराद की माली कफालत से मुआशी खुद कफालत के हसूल तक हुकूमती इमदाद का शानदार मनसूबा है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हालिया बारिशों ने इस्लामाबाद का मौसम बदल दिया है। सुबह सवेरे और रात को ठंड महसूस होने लगी। मरी और गलियात में सर्द हवाएं चल पड़ी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर इक़्तिदार का मौसम तब्दील, दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने लगी। इस्लामाबाद में दिन के वक्त हल्की धूप तो सुबह और शाम में ठंडक का एहसास होने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, ताहम बलाई इलाकों चित्राल, दीर सवात, मालम जब्बा में बादल बरसेंगे। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता रोज़ खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लसबेला की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत और मिट्टी में भी 40, मुल्तान 35 और फैसलाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 34, कराची 41, पेशावर 34 और कोयटा में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं एशियन गेम्स के हवाले से। एशियन गेम्स के स्क्वॉश टीम इवेंट में पाकिस्तान चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहा। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की। पहले मैच में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने भारत के महेश मंगावकर को 11-8, 11-3 और 11-2 से शिकस्त देकर बर्तरी हासिल की। दूसरे मैच में भारत के सारिफ घोषाल ने पाकिस्तान के मोहम्मद आसिम खान के खिलाफ 11-5, 11-1 और 11-3 से कामयाबी समेटी और मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे और फैसला कुन मैच में नूर जमान और अभय सिंह के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। तहम अभय सिंह ने मैच 11-7, 9-11, 8-11, 11-9 और 12-10 से जीतकर अपने मुल्क को गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स में पहला तमगा हासिल करने वाली नौजवान खातून खिलाड़ी कशमाला तलत के एजाज़ में एथलीट विलेज में तकरीब मुनक़िद हुई।
हॉन्गझो में होने वाली तकरीब में कशमाला तलत की कारकर्दगी को सराहते हुए अवार्ड दिया गया। तफसील हमारे नुमाइंदे शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान शूटर कशमाला तलत ने चीन के शहर हांगझो में जारी एशियन गेम्स के दौरान अपने मुल्क के लिए कांसी का पहला तमगा जीता। कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में तमगा जीता। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।